کراچی سے خیبر تک میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ کانا کے علاقے میں تیز رفتار مزدے کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 65 سالہ خاتون اور اس کی ننھی پوتی جاں بحق ہو گئیں، بیٹا شدید زخمی ہو گیا، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ ملکوال میں 60 روپے کا ادھار واپس نہ کرنے پر 2 گروپوں میں فائرنگ، 6 افراد زخمی ہو گئے، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ چنیوٹ میں پولیس کا مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن، 3 اشتہاریوں سمیت متعدد ملزمان گرفتار، بڑی تعداد میں اسلحہ اور منشیات برآمد کر لی گئیں، کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سانگلہ ہل سے ملحقہ 3 دیہاتوں میں چور گدھوں کو ذبح کر کے کھالے اتار کر لے گئے، ڈھانچے برآمد، متاثرہ کاشتکار سراپا احتجاج بن گئے، حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ صادق آباد کے علاقے کوٹ سبزل میں کاشتکاروں کا احتجاج جاری، کہتے ہیں باثر زمیندار محکمہ انہار اور انتظامیہ کی ملی بھگت سے نہری پانی چوری کر رہے ہیں، تیل کی زرعی اراضی بنجر ہو گئی۔ خانیوال شہر کی واحد تفریح گاہ وائلڈ پارک انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث ویرانے کا منظر پیش کرنے لگا، مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث نایاب نسل کے جنگلی جانوروں کو بھی خطرات لاحق ہو گئے۔ چائنا فرینڈلی کار ریلی کا ساہیوال پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا، شرکاء نے ہاتھوں میں چائنا اور پاکستان کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ عدالتی حکم کے باوجود نواب شاہ میں کھلے عام شراب کی فروخت جاری، انتظامیہ خاموش، صورتحال سے آگاہ ہونے کے باوجود کارروائی نہیں کی جا رہی۔ منظور شدہ مطالبات کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا، صحبت پور میں گورنمنٹ ٹیچر ایسوسی ایشن کا احتجاجی مظاہرہ، کہتے ہیں مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ سوات میں سی ٹی ڈی مالاکنڈ نے کارروائی کرتے ہوئے عوامی جرگے پر حملے میں ملوث مبینہ دہشت گرد کو گرفتار کر لیا، مبینہ دہشت گرد 50 افراد کے اغوا میں بھی ملوث ہے۔ مانسہرہ میں ٹرالر اور وین میں تصادم کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے، پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ دیروالا کے علاقے اشیری درہ میں سڑک کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کا استعمال، شہری سڑکوں پر نکل آئے، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صبح پنجاب سے۔ ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار 65 سالہ سفینہ بی بی اور اس کی 6 ماہ کی پوتی عبیرہ دم توڑ گئیں، جبکہ 6 ماہ کی بچی کا باپ شدید زخمی ہو گیا۔ افسوسناک واقعے کے بعد امدادی ٹیمیں اور پولیس موقع پر پہنچ گئی، پولیس نے مزدے کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، جبکہ لاشوں کو قانونی کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ ملکوال میں 60 روپے کا ادھار واپس نہ کرنے پر 2 گروپوں میں ہونے والے جھگڑے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ منڈی بہاؤدین کی تحصیل ملکوال کے گاؤں کوتوال میں نوید نامی شخص کی کریانہ کی دکان سے ایک شخص نے سودا خریدا، جبکہ 60 روپے واجب الادا تھے۔ آج نوید نے بقایا رقم کا تقاضا کیا تو مذکورہ شخص الجھ پڑا اور ساتھیوں کے ہمراہ اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی آواز سن کر نوید کے مسلح ساتھی بھی موقع پر پہنچ گئے، دونوں جانب سے فائرنگ کے تبادلے میں نوید اقبال، امجد اقبال، خالد پرویز، جبکہ مخالف گروپ کے جاوید اقبال، الطاف اور بشارت شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو ٹی ایچ کیو اسپتال ملکوال منتقل کر دیا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔
चनियोट में पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन करते हुए मुतादिद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मनशियात भी बरामद हुई हैं। चनियोट पुलिस ने जज आला सुबह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान 200 से ज्यादा अफराद को बायोमेट्रिक मशीन के जरिए चेक किया गया। पुलिस ने दौरान ऑपरेशन 3 इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमान के कब्जे से शराब, भारी मिकदार में मनशियात और नाजायज असलहा भी बरामद हुआ। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। सांगला हिल में नामालूम चोर 10 गधे चोरी करके उनकी खालें उतार कर ले गए। मुतासिरा किसान सरापा एहतजाज बन गए। सांगला हिल के नवाही गांव बेरावाला, धरीवाला और थाबल में रात के अंधेरे में चोर काश्तकारों के लाखों रुपए मालियत के 10 गधे चोरी कर ले गए और करीबी खेतों में ले जाकर उन्हें ज़िबा करके उनकी खालें उतार ली गईं। गधों की चोरी के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिस पर मुतासिरा काश्तकार सरापा एहतजाज बन गए। काश्तकारों ने जानवरों की चोरी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने पुलिस के आला हुकाम से चोरों को पकड़ने और इंसाफ फराहम करने का भी मुतालिबा किया। सादिकाबाद के इलाके कोट सब्जल में काश्तकार सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि बासर जमींदार महकमा एनहार और इंतजामिया की मिली भगत से नहरी पानी चोरी कर रहे हैं, जिसके बायस टेल की आराजी बंजर हो रही है। सादिकाबाद के इलाके कोट सब्जल के काश्तकार नहरी पानी की चोरी के बायस सरापा एहतजाज बन गए। काश्तकारों ने इल्जाम आयद किया है कि बासर जमींदारों ने महकमा अनहार और इंतजामिया की मिली भगत से सब्जल माइनर नहर में मोगों का साइज बढ़ा रखा है, जिसके नतीजे में टेल के काश्तकार पानी से महरूम हैं। तकरीबन 15 साल से हमें पानी नहीं मिल रहा और जो पानी मिल भी रहा, आ भी रहा है, वो न होने के बराबर है। टेल पे पानी नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से हमारी जमीनें बंजर हो रही हैं। इस मौका पर एक काश्तकार ने बताया कि पानी न मिलने के बायस इलाके की हजारों एकड़ अराजी वीरान पड़ी है। अगर पानी आए तो वो भी रास्ते में चोरी कर लिया जाता है। हमारी फसलें बिल्कुल तबाह है, गैर आबाद इलाका है, कोई पानी वहाँ पहुँचता नहीं है। सब्जल में अगर जो कुछ चुका आता है वो भी जो है ना रास्ते में चोरी हो जाता है। एक और काश्तकार का कहना था कि पानी ना होने के बायस लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है, जबकि मवेशियों के लिए भी पानी दस्तयाब नहीं। इलाके के लोग पानी की वजह से बिल्कुल नकल मकानी करके शहर चले गए हैं और लोग रोजी के लिए बहुत तंग हैं। पानी पहुंचता नहीं है और माल के लिए भी पानी नहीं है। काश्तकारों का कहना है कि मुतअद्दिद बार एक्सीएन और एसडीओ समेत दीगर अफसरान को भी शिकायत की गई, मगर ताहाल सुनवाई न हो सकी। एक्शन साहब ने अपने हाथ से जो है ना पैसे लिए हुए हैं और जो है ना रास्ते में उन्होंने पानी बेचा हुआ है, हमें टेल तक पानी मिलता नहीं है। काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि अहमदवाह और सब्जल माइनर में मुकर्ररा मिकदार में पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। पानी चोरी रोकने के लिए छापामार टीम तश्कील दी जाए और राब्ता नहरों की सफाई को यकीनी बनाया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर कमानिया के नारवा सलूक के खिलाफ वकला की हड़ताल 7वें रोज भी जारी है, जबकि टीएमए मुलाजिमीन भी साथी मुलाजिम को गाली गलोच करने पर दफातर की तालाबंदी करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर के तबादले का मुतालिबा कर दिया। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर के नारवा रवैये के खिलाफ वकला और टीएमए के मुलाजिमीन सरापा एहतजाज हैं। वकला ने 7वें रोज भी अदालती बाइकआउट करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। दूसरी जानिब टीएमए के मुलाजिमीन ने भी दफातर की तालाबंदी करते हुए एसी के खिलाफ धरना दिया। जूनियर क्लर्क प्लानिंग ब्रांच मोहम्मद अकबर का कहना था कि एसी कमालिया ने जो सलूक और नाजेबा अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए हैं वो इंतहाई नाशाइस्ता और अखलाक से घिरे हुए हैं। ऐसे माहौल में उनके मातहत काम करना इंतहाई नागुज़ीर है। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि एसी का फौरी तबादला किया जाए। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनका मुतालिबा तस्लीम ना किया गया तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। पंजाब हुकूमत के शहरियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। सरगोदा डिवीजन की 1 करोड़ की आबादी के लिए बर्न यूनिट के नाम पर सिर्फ एक तख्ती ही मौजूद है। बर्न वार्ड की बदहाली का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें इस्तेमाल शुदा बोतलें और फालतू सामान बिखरा पड़ा है। शहर और दीगर तहसीलों से मुख्तलिफ हादिसात में झुलसने वाले अफराद को सिर्फ इतनी ही सहूलियात मुयस्सर हैं जो किसी भी मकामी डिस्पेंसरी में फराहम की जाती हैं। सहूलियात ना होने के बायस तकलीफ से तड़पते मुतासिर अफराद को या तो फैसलाबाद या फिर खारियां मुंतकिल कर दिया जाता है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक कई बार पंजाब हुकूमत को बर्न यूनिट की हालत ज़ात पर मुरासले भेजे गए, लेकिन गुज़िश्ता 8 सालों से कोई पेशरफ नहीं हो सकी।
अलीपुर शहर इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बाइस मसाइलिस्तान बन गया। शहरी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। अलीपुर का शुमार पंजाब की कदीम तरीन तहसीलों में होता है। दौरे जदीद में भी ये तहसील बुनियादी सहूलियात से ही महरूम है। यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है। गलियां साफ ना होने से गंदे पानी के जौहर का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि गुज्जर चौक, खैरपुर चौक, बस स्टैंड समेत दीगर इलाकों में सीवरेज का पानी तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। शहर में पीने का साफ पानी भी मुयस्सर नहीं। दूसरी जानिब गोश्त मार्केट TMA की नहली की वजह से ज़बू हाली का शिकार है, जहां न सिर्फ गंदगी के ढेर हैं बल्कि दुकानों के शटर तक गायब हो गए हैं। करोड़ों रुपए मालियत से तामीर की जाने वाली दुकानों में नशइयों ने डेरे डाल लिए हैं। बाजारों में तजावुजात की भरमार से राहगीरों को शदीद परेशानी का सामना है। उधर रही सही कसर वाबरा एहलकारों की नहली ने पूरी कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए वबाले जान बनी हैं। अब तक मुतादिद अफराद करंट लगने से झुलस चुके हैं। अलीपुर शहर में LPG की गैर कानूनी रीफिलिंग भी जारी है, जबकि जगह जगह गैर कानूनी ऑयल एजेंसियां कायम हैं। शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। अब आपको बताएं कि सराय मुगल में बेवा की जमीन पर कब्जा करने की खबर वक्त न्यूज पर नशर होने के बाद RPO शेखुपुरा ने नोटिस ले लिया है। 13 नामजद और 26 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बेवा और उसके बच्चों पर तशद्दुद करने वालों में से 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज नईम सुल्तान से। नईम सुल्तान, आगाह कीजिएगा मजीद इस हवाले से। जी, चंद रोज कबल बेवा खातून रजिया सुल्ताना और 4 उसकी यतीम बेटियों के साथ बासर अफराद ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया, जिस पर वो रोते हुए पुलिस के पास गई मगर कोई सुनवाई ना हुई और फिर प्रेस क्लब के दफ्तर पहुंच गई, जहां पर नवाए वक्त और वक्त न्यूज की खबर पर RPO शेखुपुरा ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए 13 नामजद और 26 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और 3 अफराद को मौका पर गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने अपनी जमानतें करवा ली हैं। अब सूरत हाल ये है कि पुलिस ने उस बेवा औरत को उसके मकान वापस दिलवा दिया है। जी, मकान वापस दिलवा दिया गया है बेवा औरत का। नईम सुल्तान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कसूर में CIA पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी, नौसरबाजी और डकैती समेत मुतादिद वारदातों में मुलव्विस 3 डकैत गैंग के 8 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनसे असलहा भी बरामद कर लिया है। CIA कसूर पुलिस ने DPO सैयद अली नासिर रिजवी की हिदायत पर शहर में कार्रवाई करते हुए डकैती, चोरी, नौसरबाजी समेत 25 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस 3 खतरनाक गैंग कासिम उर्फ कासू, नासिर उर्फ नासरी और रमजान उर्फ जानी के 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत का मसरूका सामान और भारी तादाद में नाजायज असलहा भी बरामद हुआ है।